پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھلے، کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے۔ آج کا محاذ قانون کے نام۔ آدھے سال سے زیادہ ہونے کو ہے اور پاناما لیکس اب تک ٹپ 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 لیک کرتی آ رہی ہیں۔ سپریم کورٹ کے سائے تلے اس ہفتے 8ویں جو سماعت ہے پاناما لیکس کی ہیئرنگ کی، 8 اسٹریٹ ڈے سماعت ختم ہوئی۔ اب مدعا کیا ہے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں۔ 7-8 مہینے قبل ICIJ جو ایک انٹرنیشنل کنسورشیم ہے تحقیقاتی صحافیوں کا، انہوں نے ایک فائنڈنگ شائع کی کہ جس میں دنیا کے بہت سارے لیڈرز تھے، میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم کا نام بھی تھا، مگر ان دا کانٹیکسٹ آف ہز فیملی کہ 2 کمپنیاں ہیں، ان کی فیملی اون کرتی ہے، ان کے بچے اون کرتے ہیں، ان کمپنیز کے تھرو لندن میں چند عدد فلیٹ ہیں۔ اس فائنڈنگ پہ پرائم منسٹر صاحب کے اے پولیٹیکل صاحبزادے حسین نواز صاحب نے انٹرویو دیا اور کہا الحمدللہ یہ فلیٹ ڈیفینیٹلی ہیں۔ اب تو میں اور شور شرابہ شروع ہوا۔ ادھر پرائم منسٹر صاحب واز فورسڈ کہ وہ ایک نہیں بلکہ 2 تقاریر کریں، ایک نیشنل ٹیلی ویژن پہ، دوسری پارلیمنٹ کے فلور پہ۔ اب ان تقاریر میں جو لبے لباب ہے کہ چند عدد $1 ملین دبئی کی ایک مل سے اور چند عدد $1 ملین سعودی عرب کی ایک مل سے لے کے انہوں نے یہ فلیٹ لیے۔ جو پرائم منسٹر کے بچے ہیں ان کے بیانات لوکل اور انٹرنیشنل میڈیا کو کچھ اور نکلے۔ جو ایک واضح موقف سامنے آیا کہ پرائم منسٹر کے مرحوم والد صاحب میاں شریف صاحب نے گلف ملز کو لیوریج کر کے قطری رائل فیملی سے ڈیل کر کے یہ جو فلیٹس تھے یہ اپنے پوتوں اور پوتی کو دیے تھے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ادھر PTI PM پہ پہ گیا، کیونکہ موقف 2 نکلے۔ PM نے آن دا فلور آف دا ہاؤس اور نیشنل ٹیلی ویژن پہ ایک بات کی، اور اکارڈنگ ٹو PTI ایز ویل ایز دا ریکارڈ پرائم منسٹر صاحب کے بچوں نے ایک اور بات کی۔ جب ہیئرنگز وغیرہ شروع ہوئیں اور وہ قطری خط سامنے آیا تو PTI نے ایک اور مدعا پیش کیا کہ اگر اس قطری خط کو جو کنوینئنٹلی آ گیا ہے، جو پہلے مینشن نہیں ہوا تھا فار دا ریکارڈ، اگر ہم اس خط کو بلیو بھی کریں تو وہ پیسے جو سٹیٹمنٹس کے تحت سامنے نظر آتے ہیں کہ شریف خاندان کے پاس تھے گلف ملز کی سیل کے بعد، اس وقت تو شریف خاندان کی وہ کمپنی خسارے میں تھی، لاس میں تھی، 26 ملین درہمز کا لاس تھا۔ تو کیسے آپ نے اتنی نقصان دینے والی میل کو لیوریج کیا اور اتنے پیسے وصول کیے قطری فیملیز؟ اب تو میں تھرو دا ہیئرنگز اور ڈیولپ ہو گئی، اور پھر پرائم منسٹر صاحب کے وکیل کی وہ فیمس سٹیٹمنٹ کہ پرائم منسٹر صاحب کی جو تقریر تھی وہ تو سیاسی تقریر تھی، وہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی۔ ساتھ ساتھ پرائم منسٹر صاحب کے وکیل نے یہ بھی مدعا پیش کیا کہ اس زمانے میں جو ریکارڈ کیپنگ، بک کیپنگ ہوتی تھی وہ پرچیوں پہ ہوتی تھی، سو ٹو گیٹ دیٹ ڈیٹا، ٹو ایکسس دیٹ ڈیٹا ول بی ویری ڈیفیکلٹ۔ اس پوائنٹ پہ PTI شیر کو دبوچنے کی کوشش کرتی ہے۔ PTI والے فرماتے ہیں کہ پرائم منسٹر کی بات مانی جائے یا ان کے بچوں کی بات مانی جائے۔ PTI والے یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا ہمارے پرائم منسٹر اتنے معصوم ہیں کہ انہیں نہ یہ پتا ہے کہ بچوں کے پاس پیسے کیسے آئے اور نہ یہ پتا ہے کہ ان کے مرحوم والد صاحب کے پاس یہ پیسے کیسے آئے۔ ساتھ ساتھ PTI والے دریافت کر کے کچھ اور ڈسکرپنسیز کلیم کرتے ہیں۔ ایک تو کہتے ہیں کہ حسن نواز صاحب جو دوسرے صاحبزادے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے، انہوں نے 1999 میں ٹم سیباسٹین کو BBC کے اینکر کو ہارٹ ٹاک پروگرام میں کہا تھا کہ میں تو میئر ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، یہ جگہ میں رینٹ کرتا ہوں۔ پھر 2001 میں اسی حسن نواز نے ایک فلیگ شپ انویسٹمنٹس کی نام کی کمپنی سیٹ اپ کی، جس میں انہوں نے 2001 سے 2005 تک 12 اور کمپنیز سیٹ اپ کی، جس کے اندر اور 20 ملین پاؤنڈ سے زیادہ اکارڈنگ ٹو PTI سورسز
अकॉर्डिंग टू पीटीआई's केस 20 मिलियन पाउंड से ज्यादा इंजेक्ट किए। अब सवाल पीटीआई वाले पूछते हैं कि 1999 में आप एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थे, एक आम स्टूडेंट थे, कह रहे थे कि मैं एक आम स्टूडेंट हूं, रेंट करता हूं। दूसरी तरफ आप इस तरफ आके एक मल्टी मिलियनेयर कैसे बने? पीटीआई का एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा है। यह मुद्दा कैप्टन सफदर और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स और उनकी स्टेटमेंट्स पर बेस्ड है। जीरो इनकम टैक्स, जीरो वेल्थ टैक्स, मॉडल टाउन और जटी उमरा के रेजिडेंशियल एड्रेसेस, साथ साथ आखिरी जो बड़ी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है मरियम नवाज शरीफ साहिबा और कैप्टन सफदर साहब की, वो ये है कि उन्हें 68 करोड़ रुपीस 2011 में प्राइम मिनिस्टर साहब ने गिफ्ट किए थे। इस पे बात पीटीआई वाले उठाते हैं कि ऑब्वियसली मरियम नवाज शरीफ साहिबा डिपेंडेंट हैं। मुद्दे तो बहुत सारे पेश किए हैं, मगर मुद्दा पेश करने के लिए वकील भी होना चाहिए। पीटीआई के कैंप में जो पहली विकेट गिरी वो हामिद खान साहब की थी। उसके बाद नईम बुखारी साहब ने आके जब वकालत का महाज संभाला तो और कंट्रोवर्सीज शुरू हुई। पीटीआई की अंदरूनी सोर्सेज बताती हैं कि नईम बुखारी साहब इज नॉट रियली अ क्रिमिनल और अ कॉर्पोरेट लॉयर। इसकी वजह से जो मुद्दा है वो वैसे तो स्ट्रांग है। नईम बुखारी साहब couldn't stand on his own according to PTI sources। साथ साथ और जो उनकी जुगतें हैं या मजाक हैं वो भी सामने आई कि मैं तो स्टेपनी लॉयर हूं। इसकी वजह से सुनने में आया कि इमरान खान साहब ने अपना सर पकड़ के सर नीचे ऐसे कर लिया हेयरिंग में। कंट्रोवर्सीज चलती रहीं, ये तक बात आई कि नईम बुखारी साहब को फायर कर दिया जाएगा। बीच में एतजाज एहसन साहब का भी नाम आया। इसकी क्या कहानी थी? अंदर के सीनियर लीडर कंफर्म करके बताते हैं कि एक कैंप था जो कन्विंस था कि एतजाज एहसन जैसे जाने माने पुराने वकील को ऑफिशियली हायर करें, मगर इमरान खान साहब कन्विंस नहीं थे। जब हामिद खान साहब की और नईम बुखारी साहब की परफॉर्मेंस देखी तो रियलाइज किया इमरान खान साहब ने कि एतजाज एहसन साहब को हायर कर लेना चाहिए। मगर पीटीआई के लीडर बताते हैं इट वाज टू लिटिल टू लेट। एक तो आसिफ जरदारी साहब गेम में आ चुके थे और उन्होंने एतजाज एहसन साहब को मना कर दिया था। अब जजेस जो हैं वो कहा जा रहा है बहुत वेल प्रिपेयर्ड हैं, उन्होंने केस लॉयर से बेहतर पढ़ा हुआ है। अब 8 समातों बाद प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली का जो काउंटर अटैक है वो शुरू हो गया है। जुमेरात और जुम्मे की जो समातें हुई हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर के वकील मखदूम खान ने जो मौक़िफ़ पेश किया है वो सियासी नहीं है, वो टेक्निकल है। बुलेट पॉइंट बाय बुलेट पॉइंट जो पिटीशन पीटीआई वालों ने दर्ज करवाई है इधर, उसको खान साहब टेक आउट कर रहे हैं। पीटीआई वाले जो इन 8 समातों बाद एडमिट करने के लिए तैयार हैं, मगर ऑफ द रिकॉर्ड, कैमरे पे आके नहीं बताएंगे, ऑफ द रिकॉर्ड बताने के लिए तैयार हैं कि शायद प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाए। दैट्स राइट, अकॉर्डिंग टू माय सोर्सेज कहा जा रहा है कि शायद प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाए, मगर वही पीटीआई वाले कहते हैं कि शायद से ज्यादा चांस है, एक एक्चुअल चांस है कि प्राइम मिनिस्टर की फैमिली को कन्विक्ट किया जाए। अब इस पे सियासत शुरू होती है, इस बात पे जो नैरेटिव है वो बदलता है। प्राइम मिनिस्टर की साहबजादी का आजकल एक पॉलिटिकल रोल है। प्राइम मिनिस्टर के जो बेटे हैं वो काफी पॉलिटिकल हैं, इस मुल्क में नहीं रहते, उनकी इन्वेस्टमेंट्स बाहर हैं, उनके काम बाहर हैं। मगर अगर प्राइम मिनिस्टर की फैमिली इन्वॉल्व होती है तो फिर पीटीआई की सोर्सेज बताती हैं कि गेम ऑन है। फिर हम पे डिपेंड करता है और उन पे डिपेंड करता है कि सियासत कौन कितनी चमकाएगा। ये है आज का महाज। वी हैव अ बैंगिंग शो कमिंग अप विद इनसाइडर डेटा। मेरे साथ थोड़ी देर बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
कि एक सीनियर लीडर होंगे जिनसे मैं पूछूंगा कि अगर पनामा का प्राइम मिनिस्टर से कोई चक्कर ही नहीं है, देन व्हाई आर वी हियर। मगर खाली ये टॉपिक नहीं है आज का, एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस, तैयबा का तशद्दुद केस। कोर्ट रूम में जब पूरी दुनिया और पूरी दुनिया का लीडर आया हुआ था, तो एक 10 साला बच्ची जिसको एक जज और उसकी बेगम ने, लगता है इल्जाम है कि एक जज और उसकी बेगम ने उस पर जुल्म किया है, तशद्दुद किया है, मारा है, टॉर्चर किया है। वो कोर्ट रूम एक और बच्ची को, उस बच्ची को एक अलग किस्म का इंसाफ दे रहा था। तैयबा केस का क्या मामला है, पनामा केस का क्या स्टेटस है, ये है आज का महाज। मैं हूं उजाद सईद खान, स्टे ट्यून्ड। अब आजकल का जो ये पनामा लीक्स का जो नैरेटिव है, ये कंप्लीट नहीं है अगर हम एक शख्स से ना मिलें तो। On a daily basis, he's dominating the headlines. Daniel Aziz, कैसे हैं आप? I'm good. Good to see you, Danny. Nice tie. Very kind. Right place, right time. 8 समातें हो गई हैं। लुबिलबाब क्या हुआ क्या? लुबिलबाब ये है जी कि ये पीटीआई एक नई जमात है पाकिस्तान की सियासत में। लोग इसको पहचानते नहीं थे और इनका एक रवैया है सियासत करने का, जिसमें ये पहले एक बहुत बड़ा बोतान लगाते हैं और उसके पीछे फिर ये ज़िमनी इनके पास बोतान होते हैं छोटे छोटे, और रोज़ एक नया कशका, एक नई पन्नी चढ़ा के ये अपना सौदा बेचने की कोशिश करते हैं। जब भी वो अदालत की टेस्ट में आते हैं तो ये हार जाते हैं। मैं आपको 2-3 मिसालें देना चाहता हूँ। सबसे पहले इमरान खान ने कहा कि जी आरओज़ का जो किरदार है वो शर्मनाक था। इसी अदालत में आके उन्होंने माफ़ी मांगी सर झुका के कि जी मेरे से गलती हो गई। इन्होंने नजम सेठी के बारे में कहा कि जी इसने 35 पंक्चर लगाए, रिट्रैक्ट किया वो सब। वहाँ 44 दफ़ा उस अदालत ने उनको नोटिस भेजा है, वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं। इन्होंने जुडिशल कमीशन में कहा कि जी हमारा इलेक्शन चोरी हुआ है, वहाँ के भी इनके साथ जो है ना सुबकी हुई। अब ये लेटेस्ट मगर डैनी, दिस इज द साइन ऑफ अ हेल्दी ऑपोजिशन। अगर आपके ऊपर वो पीपीपी वाला बर्ताव करें तो फिर तो मजा नहीं आएगा। आप लोगों को भी तो थोड़ी नेट प्रैक्टिस चाहिए। नहीं, ये नेट प्रैक्टिस की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खून की होली खेली जा रही है। अच्छा ठीक है। जिस अंदाज से अदारों को गाली गलौज की गई है, जिस अंदाज से पार्लियामेंट को गाली गलौज की गई है, गिराओ जलाओ, इधर कब्रें खोदी गई, कफन बांधे गए, और आज भी वही ज़बान है कि जनाब इसको लॉकडाउन करें, सिविल नाफरमानी करें, बिजली के बिल ना दें। 1 मिनट है जाए, ये वो चीज़ें नहीं हैं जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग में शामिल होते हैं, इसमें मुल्क को नुकसान होता है। अच्छा, सियासत को दानियाल छोड़ें, अगर इस तरफ हैं, लीगली हैं, अब आपका जो काउंटर अटैक है वो शुरू हो गया है। ठीक है, इन्होंने 7-8 दिन लगाए, 7-8 समातें हुई, इनका बीच में लीगल क्राइसिस हुआ, इनका लॉयर क्राइसिस हुआ, इनका स्टेपनी क्राइसिस हुआ। वी नॉट क्लियर कि इनके जो लॉयर्स हैं वो क्वालिफाइड हैं या नहीं हैं। लोग एक दूसरे को प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, भुखला गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, ये कैमरा कह रहा है, नजर आ रहा है। अच्छा, खान साहब ऐसे सर पकड़ रहे हैं, लोग कह रहे हैं, रिपोर्टिंग हो रही है इस पे। लीगली आप लोगों ने बड़ा ड्राई तरीके से शुरू किया है, आप लोगों ने एक एपॉलिटिकल तरीके से शुरू किया है। मखदूम साहब ने बड़ा टेक्निकली पॉइंट बाय पॉइंट, बुलेट बाय बुलेट करना शुरू किया है। ये स्ट्रैटेजी है आपकी लीगल, और क्योंकि आगे सलमान राजा है, आगे शाहिद हामिद है, The big guns are standing by. इसमें मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ जी। सबसे पहले तो बात ये है कि आज तक हमें मौका ही नहीं मिला जरा करने का। जब पहला बेंच बना उसमें हमारे वकला, एक मिनट मेरी बात सुन लें, हमारे वकला को कोई 7-8 दिन की समात के बाद सिर्फ 10 मिनट का मौका मिला और वो बेंच टूट गया। ठीक है जी। उसके बाद जब नया बेंच बना, अभी आप देखें, आप खुद कह रहे हैं 8 पेशी हुई हैं, उसमें पहली मरतबा हमें मौका मिल रहा है। पहले वकील को, इनके शेख रशीद साहब भी, जमात इस्लामी के भी 2-2 वकील, इमरान खान साहब के भी, ये सारे चल चुके हैं ना। तो इसलिए जो हमारी हिस्से की बात थी वो तो अभी तक कानूनी ज़ाब्ते के मुताबिक सामने ही नहीं आई। पहली बात ये। दूसरी बात मैं करना चाहूँगा, जो आप और आज ये नई बात निकल आएगी जी तकनीकी, देखें जो तकनीकी पनाह अवेलेबल थी प्राइम मिनिस्टर को, वो तो पहले दिन से छोड़ दी, वो सरेंडर कर दी। ना सिर्फ अपने लिए, जो मेंटेनेबिलिटी की, जुरिस्डिक्शन के तमाम वो आर्गुमेंट्स जो कि हर सारिफ जो है वो देता अगर उसने अपना दफा करना था, वो सरेंडर कर दिए। वो था टेक्निकल टाइम। अब अगर जिनके बच्चे जो हैं उनको जरूरी भी नहीं था, क्योंकि वो बाहर मुल्क मुकीम है, कि यहाँ पर आए, उनको भी पेश करवाया। ठीक है, क्योंकि उनका एक पास एक ओहदा है। और ये इमरान खान जो कहता रहा कि जी मैं आपके साथ चलूंगा, आप क्यों डरते हैं, तलाशी दे दें, मुझे कोई घबराहट नहीं है। आज इमरान खान इसी अदालत में वो तकनीकी बुनियाद पर मेंटेनेबिलिटी जुरिस्डिक्शन पे गया हुआ है कि मैं बच जाऊं,
जहांगीर तरीन ने लाहौर हाई कोर्ट में केस किया हुआ है कि मुझे स्टे मिल जाए। ये वो लोग हैं जो बड़ा सीना तान के कहते थे जो हम पहले जाने के लिए तैयार हैं आपके साथ। ये नैब की तरफ पिवट क्या है? एक मिनट है, नैब की पिवट छोड़े, एक मिनट सर, मैं थोड़ी सी आपको मुकम्मल कर दूं ये। आप मुझे बताएं अब किस मुंह से ये कहते हैं कि आप तकनीकी बेसिस पे कर रहे हैं? भाई ये कंटेनर नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर तो लीगलिस्टिक आर्ग्यूमेंट ही होंगे। प्राइम मिनिस्टर बड़े चिल्ड आउट है, बड़े रिलैक्स ना हो, उनका नाम ही नहीं है। कल नहीं, एक मिनट, नहीं क्या है नाम? अच्छा बता दें, नहीं बता देना आप। नहीं देखें, आईसीआईजे ने डिलीट किया है। नहीं, आईसीआईजे ने डिलीट किया उनका नाम। आईसीआईजे कहता है जो प्रोपोजिशन है वो ये है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द पीटीआई। आईसीआईजे कहता है ये दो कंपनीज हैं, इस कंपनी के मालिक प्राइम मिनिस्टर साहब के बच्चे हैं, राइट, और प्राइम मिनिस्टर साहब के बच्चों के ये ऑफशोर कंपनी के थ्रू ये फ्लैट है, दैट्स इट। ये बच्चों के लफ्ज से मुझे इख्तलाफ है। अगर वो प्राइम मिनिस्टर साहब के बच्चे कंपनी के मालिक हैं तो वो बच्चे हो ही नहीं सकते। वो अडल्ट हैं तो मालिक बन सकते हैं ना, क्योंकि नाबालिग को तो आप मालिक बना ही नहीं सकते। तो फिर ना करें ना ऐसे ना देखें। मगर फिर अगेन आर्गुमेंट्स आती हैं, अब वो है नहीं, वो होते तो मजा आता, वो निकल गए। कौन? मगर आपके दोस्त और हमारे कौन सा दोस्त? चौधरी फवाद साहब किधर निकल गए? वो लाहौर चले गए हैं फॉर द वीकेंड। उनका एक उन्होंने कहा था, मैं अभी थोड़ी देर पहले बात की, मैंने आपका नाम लिया, मैंने कहा आई एम गोइंग टू बी इंटरव्यूइंग आवर कॉमन फ्रेंड दानियाल, तो उन्होंने कहा यार एक सवाल है, सिफारशी सवाल, तो ये इफ ही वर हियर ही वुड आस्क यू दिस कि हम प्राइम मिनिस्टर को बिलीव करें या बच्चों को बिलीव करें। बच्चे जो हैं, चले बच्चे तो नहीं है, बड़े हैं, बालिग हैं, माशाल्लाह से कनेक्टेड हैं, मगर फिर भी वो कहते हैं कि बच्चों का ये नैरेटिव है। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, हर एक को पता है क्या नैरेटिव है, दादा हजूर, कतरी खत, दिस दैट। प्राइम मिनिस्टर का ये नैरेटिव है, दुबई, सऊदीया, जो मनी ट्रेल है, जो बात की गई है, जिसके बारे में बाद में बात की हुई है, जिसके बारे में बात की गई है, जिसके बारे में बात की गई है कि वो आपने इन द ग्रेट हाउस इन द नेशनल असेंबली आपने एडमिनिस्ट्रेट किया। हाँ जी बिल्कुल। मगर बॉटम लाइन कि बच्चों को बिलीव करें या पीएम को बिलीव करें। हाँ जी, बड़ा आसान है जी, ये लफ्जों का खेल करना इनकी आदत है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये 1937 से लेकर के तो 2016 तक ये इन सालों का इन्होंने हिसाब मांगा। प्राइम मिनिस्टर की स्पीच हुई आधे घंटे की, 40 मिनट की हुई होगी, ठीक है जी। आप मुझे बताएं वो समेशन ही होगी ना, जो समेशन उन्होंने दी है। बार बार पहले दिन से हमने कहा है कि हम प्रॉपर फोरम पे पूरी तफसील बताएंगे। अब आप मुझे बताएं, जो अदालत ने पूछा कि जो असेंबली में स्पीच थी और जो ये मनी ट्रेल दी गई, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ है? क्या गल्फ स्टील का जिक्र यहाँ और यहाँ नहीं है? सिर्फ ये बताया गया कि गल्फ स्टील के बिकने के बाद उसका तरीकेकार क्या था पैसा पहुंचने का। इसमें कॉन्ट्रडिक्शन बताएं किधर है? जो गल्फ स्टील है वो 1980 में बिकती है और जो अजीजिया है वो 2000 के बाद से सेटअप होना शुरू होती है, ठीक है ना जी। तो ये जो 20 साल का वक्फा है, ये वो बड़े पसंदीदा तरीके से पी जाते हैं। कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ना स्पीच में और ना रिटन स्टेटमेंट में जो असेंबली में आई। फिर हसन नवाज का जो ये खड़ा करते हैं डिस्क्रिपेंसी का केस कि टिम सेबेस्टियन को 99 में उसने कहा आई एम अ मेयर स्टूडेंट, मैं प्रॉपर्टी रेंट करता हूँ। 2001 में हसन नवाज साहब ने कहा फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट सेटअप कर ली। 2001 से 2005 तक he sunk, invested, loaned, whatever you want to call it, around 20 million quid, 20 million pounds. अब 99 से आप भी स्टूडेंट रहे हैं दानियाल, हम भी स्टूडेंट रहे हैं। आपने जो डेट्स दी हैं जरा उनका मुलाहिजा फरमा लें। सही है। अब 1999 और 2005 में ज्यादा फर्क नहीं है। ये लोग कहते हैं कि ये मल्टी मिलियनर कैसे बन गया? भाई हसन नवाज ने क्या मतलब लॉटरी जीती, क्या किया? That's what they say, and they say the same thing about Madam मरीम नवाज शरीफ साहबा के बारे में कहते हैं कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं वेल्थ टैक्स जीरो, इनकम टैक्स जीरो, रेजिडेंशियल एड्रेस सेम एज द बिग मैन, ठीक है। ऑब्वियसली डिपेंडेंट हैं क्योंकि आप मुझे एक बात बता दें। वेल्थ स्टेटमेंट में अकॉर्डिंग टू दीज गाइस, मैं नहीं कह रहा, अकॉर्डिंग टू द केस, वेल्थ स्टेटमेंट में कितने 68 करोड़ रुपीस वर गिफ्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू मैडम। तो ऑब्वियसली डिपेंडेंसी का केस बनाते हैं, वो नन्हे मुन्ने बच्चों वाली बात आती है। फ्लोर योर्स। देखिए आपने बहुत सारी चीज़ें डाल दी, लेकिन मैं एक एक करके उनको लेता हूँ। सबसे पहले मुझे बताएं कि कहीं पर रिकॉर्ड के ऊपर किसी भी बात में क्या हसन का नाम जो है वो ओनरशिप के साथ कनेक्टेड है एवनफील्ड हाउस के जिन फ्लैट्स की बात हो रही है? आप बता दें। नहीं है ना। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये जो फ्लैगशिप वाली आपने बात की, क्या उसमें प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में जब वजाहत की गई कि उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कारोबार शुरू किया गया, उन्होंने कहा कि कारोबार में इस पैसे ने अजीजिया के बिकने में मदद की। इसका मतलब है कारोबार शुरू था, रवां दवां था।
تو کیا ان کے کسی گراؤنڈ میں فلیگ شپ کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے ان کے پٹیشن میں؟ یہ ادھر ادھر ہاتھ باہر رہے ہیں, یہ پھانک ہو چکے ہیں, ان کی سٹپنی بھی پھٹ گئی ہوئی ہے, ٹائر تو پھٹ ہی گیا تھا. یہ بتائیں پرائم منسٹر نے سیاسی سوال پاناما کو چھڑیں, Prime Minister seems rather relaxed, rather interesting. Why not? His name is not there. مگر a couple of interesting things are happening. یہ بس والا لانچ کیا, پھر وہ کٹاس راج گئے. Am I pronouncing that correctly? ٹھیک ہے. ادھر بڑی انٹرسٹنگ, بڑی میرا خیال ہے تاریخی قسم کی سٹیٹمنٹ انہوں نے دی کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی ہم سب ایک ہیں اور میں سب کا پرائم منسٹر ہوں. اچھا, ویری انٹرسٹنگ وے, اوپر یہ تلوار لٹکی ہوئی ہے اور آپ ایتھنکلی اپنے ریٹرک کو بڑا ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, بڑی 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 باتیں کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ کدھر لگتا ہے وہ جو ہیڈ کوارٹر ہے ایک ایجنسی کا, ساتھ یہ زیادہ دور نہیں ہے. پیپل آر ڈسپیئرنگ فرام اسلام آباد, وی ہیونٹ ہرڈ اینی تھنگ. کیا یہ ویکیوم ہے ہمارے کچھ دوستوں کا جو شاید اسے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل کرائسس بنا ہوا ہے, ایک مے بی گورننس کرائسس کریٹ ہو سکتا ہے, مگر فرام دا مڈل آف اسلام آباد کولیگز ہمارے غائب ہو رہے ہیں. وی ہیونٹ ہرڈ فرام دا پرائم منسٹر, وی ہیونٹ ہرڈ فرام دا PMLN ایکسپٹ دا انٹیریئر منسٹر. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ یہ تو آپ نے خود ہی تھوڑا سا کانٹراڈکٹ کر دیا ود ڈیو اپالوجی کہ خود ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹیریئر منسٹر نے دیا, اور ظاہری بات ہے جو متعلقہ محکمہ ہے اس کام کے لیے وہ انٹیریئر ہی ہے, نہ صرف اسلام آباد کے لیے کیونکہ اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن بھی ان کے متحد ہے بلکہ پورے پاکستان کے لیے. سو ان کا اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے, واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ یہ تو جاج صاحب ہم بڑی خوشی سے آپ کو دیکھتے رہے ہیں ہر جگہ, کبھی پہاڑوں میں, کبھی سمندر کے ساحل کے اوپر, کبھی اور جگہ آپ ہمیں انفارم کرتے رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کیا سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ آپ کا محاذ پروگرام ہے, آپ بہت بہتر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, آپ ہمیں بتا دیں جو محکمانہ اور حکومت کی ذمہ داری وہ تو پوری ہو رہی ہے. وہ آپ کو خود کہہ دیا کہ انٹیریئر منسٹر کی اسٹیٹمنٹ آ گئی. وے ہیئرنگ کہ جو گاڑیاں ہیں جنہوں نے اٹھایا ہے ان میں سے چند لوگوں کو, ان کی پلیٹس نہیں تھی. وے ہیئرنگ دس اینڈ وے ہیئرنگ ہینڈز آف پالیسی. اس حکومت نے ہینڈز آف پالیسی اختیار کی ہوئی ہے بیکاز آف دا پریشر ہیئر. نہیں, آئی تھنک میں مفروضوں کے اوپر تو جواب نہیں دے سکتا جی کہ جو سنی سنائی بات ہے, لیکن اگر کوئی ایسا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جس ملک میں پرائم منسٹر کو لا کر کٹہرے میں کھڑے کر ہونے کے لیے تیار ہیں, تو پھر اور کون بچ سکتا ہے. یہاں پر میرے خیال میں درخواست آنی چاہیے, اس کے اوپر جو شواہد ہیں وہ پیش کرنے چاہیے, اس کا نتیجہ نکل آئے گا. Daniel Aziz, always good to see you, always good to see you, looking spanking good as ever. Thank you. Good luck next week. Very kind. Thank you. Daniel Aziz, the man with the plan. PMLN کے کہا جا رہا ہے جو اٹیک ٹیم جو ہے اس کا ایک پیوٹل حصہ ہے, جو PR اٹیک ٹیم ہے, مگر پاناما لیکس ہو گئے. دوسرا جو کیس چل رہا ہے اس مقدس گھر میں, طیبہ کا تشدد کیس, اس کی کیا کہانی ہے؟ کون ہے طیبہ؟ ہاؤ اولڈ از شی؟ اس کے پیرنٹس کون ہیں؟ ہوم سویٹ ہومز میں سپریم کورٹ نے اسے کیوں بھیجا ہے؟ 10 دن بعد اس کی ایک رپورٹ آنی ہے جس سے اسٹیبلش ہوگا کہ ہوا کیا ہے. Why has a judge been OSD'd? ہوا کیا؟ محاذ جاری ہے. There she is. اب یہ سچویشن ہے. ایک قانون وہ جو ڈسپینس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا 8 سماعتوں بعد, مگر یہ ایک سماعت میں کام ہو گیا. طیبہ 10 سالہ ایک ڈومیسٹک سرونٹ, ایک تو اللیگل ہے بچوں کو ہائر کرنا, مگر ایک جج صاحب اور ان کی بیگم پہ الزام ہے کہ طیبہ پہ انہوں نے تشدد کیا ہے. سپریم کورٹ نے اس پہ نوٹس لیا ہے اور کافی سارے کنٹروورسیز اٹیچڈ ہیں. ان کے پیرنٹس کون ہیں, ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. اسلام آباد کے سویٹ ہومز میں اب میں بات کروں گا آگے کہ اس کیس کے پیچھے کیا راز, واٹ وینٹ رانگ.
What went wrong? वेलफेयर होम्स का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में कम है और कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने तैयबा जैसे बच्चों को ऑन बोर्ड लिया है। पाकिस्तान स्वीट होम्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है मैं पहली बार देख रहा हूँ, बट मस्ट बी अंडरस्टूड कि तैयबा के अलावा इधर बाकी जो हमारी बेटियां हैं, बेटे हैं 100 से ज़्यादा, उनकी क्या कहानियाँ हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। आज के महाज में पुलिस नहीं है, फौज नहीं है, अब सियासत भी नहीं है। एक ऐसा आदमी है जिसने तैयबा को अभी के लिए गोद लिया है। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। जमरत खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? गुड टू सी यू। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरा बड़ा अरसे से जी चाह रहा था आपसे मिलूं। बड़ी मेहरबानी वजाद भाई, थैंक यू वेरी मच। अब आई नो कि यू आर टेकिंग केयर ऑफ तैयबा, माशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि आपको पापा जानी कहते हैं? पापा पला पानी बात आ गया। मुझे ये बताएं कि खाली इसकी कहानी नहीं होगी, ऑब्वियसली 100 और कहानियां होंगी, मगर इस केस के बारे में अभी सो फार बताएं, हुआ क्या है? What's your take on it? बेसिक वजात भाई, बाकी तो बहुत कुछ आपने देखा। मैं तो इसको जब सुप्रीम कोर्ट में गया और मेरी कोशिश थी कि तैयबा पाकिस्तान स्वीट होम, ये जो नन्ही मुन्नी परियों का घर है, इसमें आ जाए। और आपने देखा कि माशाल्लाह 2 दिन पहले जब यहाँ पे आई उस दिन उसके हालात क्या थे, और आज मेरी ये बेटी माशाल्लाह मेरी रेगुलर बेटियों के साथ यहाँ पे एंजॉय कर रही है। और वजाद खान, आज मैं इस हवाले से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज फर्स्ट ये माशाल्लाह इसने स्कूल ज्वाइन किया है। पहली दफ़ा इसने पेन और किताब पकड़ी हाथ में। अच्छा, ग्रेट। जो मेरा मिशन है कि जितनी भी बच्चियाँ और बच्चे पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो तैयबा की शक्ल में कहीं भी मौजूद हैं, उनको मैं पाकिस्तान स्वीट होम कैसा बनाऊँ और हर बच्ची के हाथ में कागज़ हो, कलम हो, और इस पाकिस्तान को हमें खूबसूरत पाकिस्तान बना दें। खान साहब, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की। अभी मैं सुप्रीम कोर्ट से आ रहा हूँ, उधर ऑब्वियसली एक और केस चल रहा है, मैं वो कवर कर रहा था, पैनमा लीक्स का। अजीब सी बात है कि कल परसों में जब ये समाअत हुई, सुओ मोटो हुआ तैयबा पे, तो एक कोर्ट रूम में पैनमा लीक्स और इमरान खान बमुकाबला नवाज शरीफ और फलाना, हाँ, मतलब पूरी दुनिया का बंदा उधर था। और दूसरे कोर्ट में एक इस बच्ची का फ्यूचर डिसाइड हो रहा था। जो मुझे सुनने में आया है कि उधर कोई लीडर नहीं था, उधर कोई सियासतदान नहीं था, उधर खाली जर्नलिस्ट थे और बाकी कुछ लोग थे। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट कि हम सियासत से ऑब्सेस्ड हैं और अपने फ्यूचर से ऑब्सेस्ड नहीं? तो सिर्फ अपील ही कर सकता हूँ जितने भी सियासतदान हैं, सारी पार्टियों के सरबराहान से, कि आपको अल्लाह का वास्ता है, इस पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये लावारिस और यतीम बच्चे हैं, जो लाखों की तादाद में हैं पूरे पाकिस्तान हमारे में। बाय द वे आदादोशुमार गिलगित में कितने बच्चे हैं? व्हाट्स योर एस्टिमेशन? बैड लक ये है कि इनका कोई आदादोशुमार नहीं है। यहाँ 25,000 रुपए का मोटरसाइकिल है, उसकी रजिस्ट्रेशन जरूरी है, लेकिन अगर किसी के पास 400 बच्चियां, 600 बच्चियां, 1000 बच्चे मौजूद हैं, उस पे कोई कानून लागू नहीं है कि ये बच्चे किसके हैं। You're telling me कि से आए कितने यतीम हैं पाकिस्तान में? नहीं पता। इनका कोई रिकॉर्ड नहीं किसी सूबे के अंदर। तैयबा के केस से समाज से एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने वो जो स्कूल्स विजिट किए जी, और जी। वो बसें दी और बच्चों के बारे में बात का, अपनी साहिबजादी के बारे में भी कहा कि वो बच्चों को देखनी है। तो मे बी थ्रू दिस शो मरियम नवाज एंड मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कैन टेक केयर ऑफ बिजनेस है। मगर मुझे ये बताएं कि कमिंग बैक, किस किस्म के बच्चे आपके पास आते हैं? देखिए, हमारे पास तो वो बच्चे आ सकते हैं जिनके वालिदैन नहीं या वालिद नहीं, जिनको अब मैं फरिश्ता और परियां कहता हूँ, क्योंकि कभी ये यतीम थे। अब तो आपको पता है ना, ये मेरी जान है। मुझे ये बताएं,
वो जो हो गया सिकंदर के साथ हो गया, उसे जेल शेल हो गई, उसके बच्चों का क्या हुआ? उसके बच्चे तो बेसिकली उनकी नानी जो है वो लेके चली गई था, तो उनकी मदर भी बच्चों की बाहर है। What do you think of the return of Asif Zardari? देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, इमरान खान हो, बिलावल मेरा लीडर हो, कोई भी हो, और यकीन जानिए कि जो मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया है इसके अंदर भी बेनजीर साहब की बड़ी सोच थी। उनका ये कंफर्म ख्याल था कि जब तक ये लावारिस बच्चे महफूज नहीं होंगे पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो सकता। और मैं समझता हूँ ये सबकी जिम्मेदारी है। आज अगर देखें कि दहशतगर्दों के पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो ये लावारिस बच्चियों और बच्चे हैं। आज मैं समझता हूँ आज अगर इनको हम महफूज कर लें, आप देखें कि जितने भी बच्चे उसमें आते हैं 14 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में बम ब्लास्ट करते हैं, किसी का डीएनए टेस्ट नहीं आपको मिलेगा, वो सेम इसी पोजीशन में उनको लेके जाते हैं। अब मुझे ये बताएं, कमिंग बैक टू तैयबा, आपके मुंह में घी शक्कर इंशाल्लाह करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, हमारी बच्ची हैं, हमारी बच्ची हैं। मगर मुझे ये बताएं, कमिंग बैक टू तैयबा, लीगल स्टेटस क्या है? आपको कस्टडी दी है कोर्ट ने? देखिए, आपके पास तैयबा कब तक है, क्या होगा? इसकी 18 तारीख फिक्स है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहाँ पे डिसीजन होता है इसका फर्दर फ्यूचर का कि तैयबा ने कहाँ पे जाना है। लेकिन मुझे अल्लाह की ज़ात से कभी उम्मीद है कि तैयबा मेरी बेटी है, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश है। और दूसरा मैंने सोच लिया इंशाल्लाह कि मैंने इसको बैरिस्टर बनाना है इंशाल्लाह, और इसको किसी बड़े अवान के अंदर लेके जाना है। पेरेंट्स का क्या स्टेटस है? देखिए, वो तो डिसीजन करना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। अभी तक तो यही चल रहा है कि इसका वालिद कौन है, वालिदा कहाँ से है, लेकिन जो भी इनका वालिद है जहाँ से भी आई है, मेरी जिंदगी का मिशन है। अब तो माशाल्लाह आपको पता है इतनी यहाँ पे लवली होगी, यहाँ पे ऑलरेडी 3 तैयबा हैं, इतनी इसके फ्रेंड्स यहाँ पे बन गई है कि इसको अगर आप खींच के भी जाएंगे तो लिन नहीं जाएगी, लेकिन ये अब मेरे पास रहेगी। और आज भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा दिन था, ये स्कूल गई और मैं इसको देख रहा था कि किस दिलचस्पी के साथ आज तो हमने जो हमारे एजुकेशन का पूरा सेटअप है उनकी मीटिंग की। इसकी एज माशाल्लाह इस वक्त तकरीबन राउंड अबाउट 10 इयर्स है, और हमने इसको 2 सालों में इंशाल्लाह तकरीबन 6 क्लास में ले जाना है। अब जब आपके पास कल आई, इसकी क्या हालत थी? देखिए, परसों जब आई तो उस वक्त पूरी दुनिया देख रही थी मीडिया के ऊपर कि सहमी हुई थी, डरी हुई थी, रो रही थी, मैं जब उठा के ला रहा था। लेकिन अगले दिन ये अपने सैकड़ों फ्रेंड्स के साथ, बहनों के साथ मिल के एंजॉय किया। और बच्चों की वजाहत खान सबसे बड़ी कमजोरी पता है क्या है? ये मन के बड़े सच्चे होते हैं और बच्चे होते हैं, और इनका और बताओ तैयबा कैसी, इनसे पता करें कि इनसे तरह बातचीत करें आप कि तैयबा कैसी है यहाँ पे। तैयबा कैसी है, कैसी है? हाँ ठीक है, मजेदार है, हाँ ओके है, पाख्तो बोई दे यार, हाँ पख्तो राजी। अच्छा, वेल कमिंग बैक इन, मैं यही कह सकता हूँ कि आप जैसे बहुत सारे ज़मरत खान पाकिस्तान को मिले। गुड लक, थैंक यू सो मच, थैंक यू ज़मरत खान। आई विश, मेरी यही दुआ है, देयर इज अ लॉट मोर पाकिस्तानीज लाइक यू। ज़मरत खान फ्रॉम पाकिस्तान स्वीट होम्स एंड द यंग तैयबा, अगेन केस जारी है, पेंडिंग है। हम ये सामने हमारी बेटी, हम बात नोटी सी है, हम बात नहीं कर सकते तैयबा से, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वी कैन ओनली टेप हर, वी कांट टॉक टू हर। बट ज़मरत खान साहब एंड ऑफ कोर्स जो पाकिस्तान स्वीट होम की जो बाकी टीम है, मतलब अनबिलीवेबल के एक्चुअली बहुत सारा प्यार है, दे एक्चुअली कॉल हिम पापा जानी। तो 2 केस आज की तारीख में, इन हफ्ते 10 दिनों की तारीख में 2 महाज, पैनमा लीक्स, द रिच एंड पावरफुल, मिलियंस और बिलियंस दरहम और डॉलर, मनी ट्रेल्स और ईगोज, और दूसरी तरफ एक 10 साला बच्ची और तशद्दुद। अब आप डिसाइड करें कि फ्यूचर आपके हाथ में है। जज साहब, जज साहिबान, जस्टिस मस्ट प्रिवेल, जस्टिस मस्ट बी डिस्पेंस्ड। मैं हूं वजाद सईद खान, ये महाज कानून के नाम।